Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Student, in our previous lecture we have completed chapter number 7 question and answer and also all the objective type questions in our textbook, and I told you in our next lecture we will do the map activity, but we have वर्कशीट ऑल्सो, जो हमारा वर्कशीट है वो रिमेनिंग है अभी, तो पहले हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर वी विल डू द मैप एक्टिविटी. जब तक जिन बच्चों ने मैप नहीं लिया है या जिनके पास मैप नहीं है वो मैप लेकर रख लेंगे. इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मैप एक्टिविटी करेंगे और क्वेश्चन बैंक करेंगे इस चैप्टर का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम डे 1. डे 1 और डे 2 आपको होमवर्क में मिला था, तो इसका पहले आप करेक्शन करेंगे. आफ्टर देन वी विल कंप्लीट फ्रॉम डे 3 टू डे 6. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज exercise 1. Answer the following. Grasslands are found in which zone? Grasslands are found in the temperate zone. Okay, and the second is in which degrees does both Tropic of Cancer and Arctic Circle lies in northern hemisphere? It is in Tropic of Cancer lies in 23.5 north and Arctic Circle lies in 66.5 degree north in northern hemisphere. Okay, and third question is in which degrees does tropical ट्रॉपिक, बेटा यहाँ पर ट्रॉपिक होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइज इन 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल लाइज इन 66.5 degree south in southern hemisphere. Okay, and fourth question is what are the different names in different continents are called? So first is prairies in North America, second steppes in Russia. प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज रशिया में कहा जाता है, पंपास साउथ अमेरिका में कहा जाता है, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन. नाउ डैश इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज इन रशिया एंड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ग्रासलैंड्स आर कवर्ड विथ tall grasses. Okay, now next is grasslands are found in which zone? It is done. ये कंप्लीट हो गया डे 1. नाउ डे 2. डे 2. So here is question exercise number 1. Answer the following question. In which color does the tall grass remains in prairies? अब prairies के अंदर grasses जो हैं किस कलर्स में रहती हैं? The grass remains green in summer and turns brown in autumn. Autumn season में ये brown कलर की हो जाती हैं और बाकी के टाइम ये ग्रीन कलर की रहती है समर में. Now what were they earlier known as? Earlier they were the grazing grounds of bisons. Bisons means wild ox. Okay. Now where are prairies located? बच्चों यहाँ पर वर लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना. Are prairies located? Prairies are located in the interior part of the North America. आपने बुक में मैप देखा है, मैप में ये नॉर्थ अमेरिका है इस तरीके से और नॉर्थ अमेरिका के बीच में प्रेरीज है. ओके, now the next is what type of land form are in western part? The western part of the grassland is hilly. The western part of the grassland is hilly. Now fifth is what type of land form is in eastern parts? So the eastern part of the grassland is flat. Okay, now fill in the blanks. The river Mississippi and Missouri are flows in this region. Now prairies include a part of southern part of Canada and the central United States. Central United States. We see mostly, now third is we see mostly bisons grazing in grounds. Okay, now the next is day 3. First exercise, answer the following. What type of winters are in this region? We found winters are
कोल्ड एंड ड्राई इन दिस रीजन वी फाउंड। प्रेरीज की जो विंटर है वो कैसे हैं, कोल्ड एंड ड्राई। नाउ व्हाट टाइप ऑफ समर्स वी फाउंड देयर, समर्स आर हॉट विद अ मॉडरेट रेनफॉल। प्रेरीज की समर कैसी हैं, हॉट है, और रेनफॉल कैसा है, मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड वी कॉल, और इस तरीके के क्लाइमेट को जहाँ पर विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई एंड समर्स आर हॉट विद मॉडरेट रेनफॉल, इसे कैसा क्लाइमेट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नाउ व्हाट वर द हॉट विंड्स वी कॉल्ड विच ब्लो इन स्प्रिंग, तो हॉट विंड्स कॉल्ड चिनूक ब्लो इन स्प्रिंग। ओके, यहाँ पे भी आपको आर कर लेना है बच्चों। ओके, नाउ अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग। वी सी द बिग वाइल्ड ऑक्स ग्रेजिंग आर, सो इट इज बिसोन्स। First unscramble word is bisons. Now the second is the land forms was covered with dry long grasses, so ये क्या है, grasses. Now the river flow in this region मिसिसिपी। मिसोरी भी है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही अनस्क्रैम्बल है, तो वो क्या है, मिसिसिपी। नाउ द क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ओके, नाउ हॉट विंड आर कॉल्ड, इट विल चिनूक। ओके, नाउ द थर्ड इज ट्रू और फॉल्स। वी सी हॉर्सेज एंड याक ग्रेजिंग फ्लैट लैंड, नो इट इज फॉल्स। वी सी द बिसोन्स यानी कि वाइल्ड ऑक्स। Now next is question number 2. Prairies stretch interior part of southern Canada, false. Now prairies have high mountain ranges, false. Now the tall grasses turn brown in autumn, yes it is true. Now the day 4, answer the following questions. Why these regions are very dry mostly, तो बिकॉज ये रीज़न इतना ड्राई क्यों है, बिकॉज दीज रीजन्स लाइज इन अ रेन शेडो एरिया। ये ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पर रेन बियरिंग विंड नहीं पहुँच पाती, और जहाँ पर रेन बियरिंग विंड यानी कि ऐसी विंड जो अपने साथ बारिश लेकर आती है, अगर वो किसी प्लेस पर नहीं पहुंच पाती या फिर कोई प्लेस उस रास्ते में नहीं आता, तो उसे हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। विच पार्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग, वेस्टर्न पार्ट आर यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग। नाउ विच पार्ट यूज्ड फॉर मेज कल्टिवेशन, द ईस्टर्न पार्ट्स आर यूज्ड फॉर मेज कल्टिवेशन। विच पार्ट इज यूज्ड फॉर व्हीट कल्टिवेशन, द सेंट्रल फर्टाइल एरिया इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ wheat. Okay, now what does the prairies region called? The prairies regions are called the granary of the world. ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, और जिस जगह पर हम अनाज रखते हैं, जिस जगह पर उसे ग्रेनरी कहते हैं, यानी भंडारण, अनाज भंडारण, दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है प्रेरीज को। और साथ ही साथ वीट बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। Now fill in the blanks. Moderate rainfall is about 50 to 70 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, यहाँ जो बारिश होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि ना तो बहुत कम ना ज़्यादा, और कितना होती है, सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। बट कंपलसरी नहीं है कि एवरी ईयर 50 या 70 हो, थोड़ा ऊंचा ज़्यादा कम वेरिएशन होता रहता है। ओके, नाउ द प्रेरीज रीजन लाइज इन अ रेन शेडो एरिया। Prairies region lies in a rain shadow area. Now the climate is continental. Prairies का climate कैसा है, continental. Now next is day 5. Exercise 1. Answer the following. What does the rare livestock called? अब बच्चों जो वहाँ पर लाइव स्टॉक यानी कि जो प्रॉफिटेबल कैटल्स हैं, उन्हें रेयर करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, उन्हें गौचेस कहा जाता है। ओके, नाउ सेकेंड इज व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, व्हीट एंड मेज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीट और मेज ग्रो किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन हियर, इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरिड हियर। यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर बहुत सारा
प्रोडक्शन किया जाता है किससे, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, मशीनरीज और फर्टिलाइजर. वाई दिस रीजन इज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हीट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. नाउ द व्हाट डज द फर्टाइल सॉइल ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड. अब इस एरिया के अंदर जो फर्टाइल लैंड है उसे वहाँ की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, चिरनोजेम. चिरनोजेम कहा जाता है. द फर्टाइल सॉइल ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड चिरनोजेम. नाउ द अनस्क्रैम्बल द वर्ड इट इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इज wheat and maize. ये जो unscramble है ये क्या बनेंगे, wheat and maize. Now the gauchos who rear livestock are gauchos. Okay. Now it is type of climate continental. ये क्या है बच्चों, continental है. थोड़ा लाइट दिख रहा है but I think you will be able to read it. Very less is quantity. तो कोई भी चीज़ जो कम होती है क्वांटिटी में उसे स्पार्सली कहते हैं. ओके. Now the next is day 6. अब day 6 में फर्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकेंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज. द सेकेंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज इज रियरिंग एनिमल. एनिमल को पालना. वाई देयर इज लो रेनफॉल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन, इट इज इन अ रेन शेडो एरिया. Now what is the animal from known as in this region, bisons. इस एरिया का जो एनिमल है, यहाँ से जो एनिमल है उसे क्या कहा जाता है, बिसोन्स. व्हाट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट मोस्टली देयर, वहाँ पर मिल्क एंड मीट. जो फूड प्रोडक्ट है वो क्या है, मिल्क एंड मीट. एनिमल जो वो पालते हैं उससे उन्हें क्या मिलता है, मिल्क और मीट. तो ये फूड प्रोडक्ट हैं जो किसी चीज़ से बनाए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं. एक फर्स्ट प्राइमरी थिंग से सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया गया. नाउ विच इज़ द मेन सेंटर फॉर स्लाउटरिंग एनिमल्स. शिकागो इज़ द मेन सेंटर फॉर द स्लाउटरिंग एनिमल्स. स्लाउटरिंग एनिमल्स मीन्स किलिंग द एनिमल्स. नाउ बच्चों देखो यहाँ पर ये जो हमारा है ये फिलिप्स के लिए ये जो जगह है ये कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है. यू कैन राइट ऑल्सो हियर. ठीक है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट, डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. तो यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं, मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स. मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स. मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स. नाउ द सेकेंड इज डैश आर मोर डेवलप हियर इन प्रेरीज. अब यहाँ पर और भी दूसरी चीज़ें हैं जो बहुत डेवलप है. वो क्या है, ऑयल क्रशिंग एंड ऑयल रिफाइनरी. यानी कि ऑयल क्रशिंग मीन्स माइनिंग करके ऑयल को निकालना और फिर उसे रिफाइन करना, यानी कि उसके अंदर से अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना, रिफाइन करना, यानी कि उसे शुद्ध करना. द प्रेरीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. अब प्रेरीज क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. यहाँ मीन्स वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत थिनली है, थिकली नहीं है. नाउ प्रेरीज लाइज इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ काउज आर रेड फॉर मिल्क एंड मीट. अब बच्चों देखो काउ वहाँ पर किस लिए रेयर की जाती है, यानी कि पाली जाती है, मिल्क के लिए और मीट के लिए. काउ से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है उन्हें, मिल्क एंड मीट. So student, our chapter number 7 in worksheet is completed. Okay, from day 1 और day 2 आपको होमवर्क में मिला था जो आपने अभी उसका करेक्शन भी कर लिया, और डे 3 से 6 तक इस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है. तो PDF में से आपको ये सारा देखकर कंप्लीट कर लेना है. ओके. और इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू द map activity and the question bank of this chapter. Okay student, now take care, bye.